So today we will start with revision of admission and admission of partner in a partnership firm. It is very much common in practice that whenever two or more than two persons come together for partnership, sometimes it happens due to various reasons that they need to welcome a new person. Sometimes a new partner is admitted in the firm, and on the admission of the new partner, the old partners will sacrifice some portion of their share in favor of incoming partner. Therefore, one or two partners would sacrifice some portion of their share, and the incoming partner will gain that portion of share, right? So here we talk about sacrificing ratio. Sacrificing ratio is the ratio in which old partner sacrifice their share in favor of incoming partner, right? The incoming partner is gained. Incoming partner gains the sacrifice made by the old partners. For example, if there are two partners, A and B, sharing profits in the ratio 1:1, and if a new partner is admitted, C, a new partner is admitted C, and you can see that A and B both have sacrificed half, right? Both have sacrificed 50% of their share. Both have sacrificed 50% of their share, and the new partner has gained 50% of A, 50% of B, and he gets half. He gets, और A और B का हो जाएगा 1/4 and 1/4. कैसे? Earlier A and B share was this. A sacrifices half of half. A sacrifices 1/4. Same way B sacrifices 1/4, right? Both sacrifices 1/4, 1/4. तो हाफ का 1/4, हाफ का 1/half, तो दोनों ने 1/4, 1/4 sacrifice किया. When they sacrificed this, it was taken up by C. C gains 1/4 plus 1/4, it becomes 2/4. और अगर तीनों को ऐड करेंगे it would be 1. If you add this plus this plus this, it should be 1. क्योंकि हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं, it would be 1. So A has sacrificed 1/4 of his share, B has sacrificed 1/4 of his share, right? दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सेम ही आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है, दोनों ने बराबर सैक्रिफाइस किया है. और C has gained the sacrificed portion of A and B. This is very simple to understand who is sacrificing, what is the meaning of sacrifice, and what is the meaning of gain. Here, gaining ratio. We are calculating sacrificing ratio. Okay, in case of admission. Gaining ratio in case of retirement. Because when a partner will retire or will go away from the partnership, the remaining partners will take his share. So they will be on the gaining side. वहां gaining ratio निकालते हैं. तो sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या होगा? Old minus new. Sacrificing ratio will be old ratio minus
new ratio, right? Old ratio minus new ratio. On the admission of a new partner, there are different cases to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. I will explain them one by one. All the 4-5 cases. Case number 1. Case number 1 is when a new partner is admitted and nothing is mentioned about his share. Suppose A and B are partners and the ratio is 3:2. Question says C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share. Other than that, no information is given in the question. ये इसकी पहचान है. ना तो ये बताया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ना ये बताया कि वो जो न्यू पार्टनर आ रहा है दैट पार्टनर विल टेक हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन विच रेशियो, ना ये बताया कि ए एंड बी वुड सैक्रिफाइस हाउ मच, राइट. सिर्फ सिंपल सी इंफॉर्मेशन क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स शेयर, दैट्स ऑल. दिस इज केस नंबर 1, राइट. इसको करने का तरीका क्या है, स्टार्ट विथ लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, न्यू partners share 1/4. Therefore, remaining profit कितना हो जाएगा, 1 minus 1/4. This is the remaining profit. Every time you identify that this is case number 1, you will always follow this step. This 3/4 share means 3/4 profit, remaining profit will be shared by A and B in the old ratio only. मतलब जो चीज नहीं गई है वो हमने खुद ही समझनी है. दैट जब दो पार्टनर आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं और एक नया पार्टनर आता है और ये डिसाइडेड है कि उसे 1/4 देना है या 1/3 देना है, तो उसको देने के बाद जो बचेगा उसे भी सेम रेशियो में वो शेयर करेंगे जिसमें पहले करते थे. तो नए पार्टनर को 1/4 देने के बाद जो बचा 3/4, दैट दे विल शेयर इन दिस रेशियो ओनली. सो एज न्यू शेयर कितना था, ये देखिए 3/9/20. Is new share 2/5 of बेटा जिसका निकाल रहे हैं शेयर, इसका निकाल रहे हैं शेयर, वो हमेशा बाद में लिखना है. ऑफ है ये मतलब मल्टीप्लाई है. इसको इधर भी लिखोगे तब भी सेम आएगा आंसर, बट इट वुड शो that you don't know what you are doing. 10 रुपए का आधा करना है तो हाफ ऑफ 10 लिखेंगे ना, कि 10 ऑफ हाफ. आंसर तो सेम ही आएगा, बट इट शोज दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि बाद में बड़ा हिस्सा आएगा जिसका आप शेयर कर रहे हैं. ठीक हो गया. ये ऐसे भी हो सकता है ना, हाफ ऑफ 3/4 या 3/4 ऑफ 3/4 है. सो जिसको कर रहे हैं वो बाद में आएगी, डिवाइड कर रहे हैं, ये बड़ा होता है हमेशा. ये आ गया. अब सीज न्यू शेयर 1/4 था, लेकिन यहां तो बीच में 20 है नीचे, तो इसमें भी
डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी सेम, तब जाके रेशियो बनता है। 9/20, 6/20, 5/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6। ये अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया सर। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। नाउ यू कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालो कॉपी। फर्स्ट टू कॉपी दिस all 4-5 cases I will explain. All the 4-5 cases I will explain you. You copy this one first. एग्जाम्पल भी हम यही लेंगे सेम हर एक में, ताकि आपको पता चले उनमें डिफरेंस क्या है। आई विल नॉट चेंज द एग्जाम्पल ऑल्सो। द होल क्वेश्चन विद द मेथड आपको जो है खुद ही जो है याद हो जाना चाहिए। एक चीज बस याद करनी है आपने, ये बाकी तो ये खुद करना है आपने। द ओल्ड पार्टनर्स A and B are partners sharing profits in the ratio 3:10. 2. New partner C is admitted for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio, sacrificing ratio. ठीक है? हाँ बेटा थोड़ा वो करो ना, वार्म अप करो। 3:2 और इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा 3:2 ही आएगा। ठीक है, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा जो ओल्ड होता है। इसको नोट करो वहीं पे, ये टिप दे रहे तुम्हें। दिस इज अ टिप कि आपका आंसर वहां गलत ना है। whenever there is case 1, sacrificing ratio will be same as old ratio. तो you will calculate in the exam. मान लो वहां गलत आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं, because I am telling you the tip that it will always be same. कैलकुलेट करके देखिए ऐसे। बेटा ये खुद भी करोगे ना इतनी देर से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। केस तो मुझे याद हो गया ना, आप उसको कर लेना घर में। ये निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, A sacrifices, old ratio of A is 3/5. New ratio of A is 9/20. 20 is the LCM. 3/20 आ गया इसका। B is sacrifice 2/5 minus 6/20. 8 minus, that is 2/20. Medhavi C, 3:2. थ्री रेशियो 2। और जो कंक्लूजन हमने निकाला इसमें से, वो कंक्लूजन ये है दैट in case 1 when you identify that this is case 1, sacrificing ratio is same as this is our finding for checking the answer also. एग्जाम में आप आंसर जो है पहले से श्योर है कि ये होगा। नहीं, सॉल्व तो करना पड़ता है वहां पर, बट यू कैन बी श्योर ऑफ योर आंसर।
सॉल्यूशन तो वहां पर दिखाना पड़ेगा। नाउ वी कम टू केस 2, सब कुछ सेम है। केस 2 एवरीथिंग इज सेम, क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर रहे हम, एग्जाम्पल आई एम नॉट चेंजिंग। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, लेकिन लैंग्वेज क्या होगी उसकी, पहचानेंगे कैसे? ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर which 1/4 share which he acquires equally from A and B, which he acquires equally from A and B. अगर 3 पार्टनर होंगे तो A, B एंड C दोनों से आधा आधा लेगा। 1/4 का हाफ किससे लेगा? A से। और 1/4 का हाफ किससे लेगा? B से। ऐसा नहीं कि he will take 1/4 from A and 1/4 from B, ऐसा नहीं। 1/4 मान लीजिए 10 रुपए है तो वो 5 रुपए A से लेगा और 5 रुपए B से। From A he will take half of 1/4. Similarly, from B he will take half of. So C. C will take from A half of 1/4 and from B half of 1/4. 1/8 1/8 लेगा A and B से। So A's न्यू शेयर क्या होगा? 3/5 minus A will give 1/8 to C. 40 will be the LCM. नाइनटीन बाय A का B's न्यू शेयर 2/5 minus and C's न्यू profit sharing ratio will be 19 चेक कर लो कैलकुलेशन में, जल्दीबाजी में गलत हो। 19:11:10। This is the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio of A, B and C. इसकी भी टिप ले लो। टिप ले लो क्या? तो निकाल लो फिर, पहले आप कैलकुलेट कर लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर देखते हैं कि तुम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। डन? नहीं सर, नहीं सर। Now we will calculate sacrificing ratio.
है 3/5 minus 25. Minus 90. 5 by 7/8 हो गया 5/5 B 2/5 minus कितना था 11/40 कितना आ गया 16 minus 11 sacrificing ratio case 2 in which sacrificing ratio will always be equal. One is to one. जी I think you have not taken it seriously. C is admitted for 1/4 share which he takes equally from A and B या A, B and C. जितने भी पार्टनर होंगे ओल्ड वंस वो जो हिस्सा देंगे वो बराबर बराबर देंगे. अरे तो जब बराबर दे रहे हैं उन दोनों ने कितना कितना दिया था याद है ना 1/8 1/8. ए ने भी अपने हिस्से का 1/8 दिया था बी ने भी 1/8 दिया था. दे सैक्रिफाइस्ड सेम अपने हिस्से का 1/8 देते तो अलग बात थी लेकिन उन्होंने दिया ही 1/8 था बस. क्योंकि मैंने बताया था इन एग्जाम्पल अगर 10 रुपए देने हैं सी को दोनों 5-5 रुपए दे रहे हैं राइट. तो दोनों बराबर पैसे दे रहे हैं उसे. शेयर विल बी सेम देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग तो फिर वही आना चाहिए इससे. ये था केस नंबर 2. सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल. होने को तो कई हैं कई. some questions are in such a way कि वो अपने आप में एक केस हो जाता है. जैसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं they themselves are cases. सर गोल्ड में नहीं आएगा ना. ये तो बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट है. in the big question full length question you will have to ये कितने मांगता हूं एक मांगता हूं. अरे ये नहीं निकला तो तुम्हारी कई चीजें नहीं निकलेंगी. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत है तो आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा गलत नहीं हो गया. फिर केस नंबर 3 A and B same. C is admitted C is admitted for 1/4 share which he acquires from. आपको शेयर दिया हुआ नॉट इक्वल. नाउ एक पर्टिकुलर शेयर दिया हुआ. C is admitted for 1/4 share which he acquires from A and B in the ratio 2:1. हालांकि ये सेकंड केस का ही एक्सटेंडेड को समझ लीजिए आप. इन सेकंड केस we made it half equally. तो हम यहां पर 1/1 था यानी कि सेकंड केस में 1:1 में ले रहा था इक्वली. अब वहां पर एक पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ नॉट इक्वल बट इन अ पर्टिकुलर
रेशियो। तो 2:1 मिलेगा 1/4 फ्रॉम ए एंड बी। मेथड सेम रहेगा। फ्रॉम ए कितना लेगा 2/3 ऑफ 1/4, 2/3 ऑफ 1/4 ये हो गया आपका 2/12। फ्रॉम बी इस बार पूरा इसी में सोल्व कर देंगे यही 1/3 ऑफ 1/4 ठीक हो गया। इतना इतना तो ये ए और तो एज न्यू शेयर 3/5 minus 2/12, 12 और 5 LCM will be 60 ना। Yes, sir. Sixteen by 60. 20 very good। D's 2/5 minus 1/12, huh? 12 है ना? 15/60। So new profit sharing ratio, Sir, into 50 here. new profit sharing ratio 16:19:15 ठीक हो गया। सैक्रिफाइसिंग भी यही निकाल लेते हैं। निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए ओल्ड रेशियो 3/, 20/60, 20/B, Six over 60. 19। Six over 60. 1/10. तो ये आया 20:6 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना हो गया वैसे? ठीक हो गया। कैलकुलेशन एक बार चेक करो, मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं। चेक कर लो पहले, जस्ट गो थ्रू। कहीं पर एक जगह पे भी थोड़ी गलत होगी तो सारी गलत आ रही है फिर। जस्ट गो थ्रू 2:1, 5/60. कहां पर 6/60 है, 5/60. देखा? Yes, sir. मैंने तो 5 ही बोला। मैंने तो 5 ही बोला। हाँ, मैंने 5 बोला। आपने थोड़ा
और भी अभी चेक करो, देयर विल बी सम मिस्टेक। वहां से बोली जा रही है बस। मैंने 5 बोला Keep quiet. 24 में से 19 नहीं बता पाऊंगा। Check it, check it. Now here is the mistake. 36 minus 10 is 26. New profit sharing ratio will be 26, 19, 15. So it will be again here 26. It is 26 and it will be 10. 10 upon 60 and 5 upon 60. 10 ratio 5. That will be 2 2 ratio to 1. यही टिप है ना. Sacrificing ratio will be this one. Sacrificing ratio in this case would be the ratio in which new partner acquires his share. जैसे कि in case number 2 he acquired equally, answer was equal. In this case he acquired in this ratio 2:1 because the partner acquires his share from the old partners in 2:1. So sacrificing ratio would also be 2:1. This is the tip number 3. In this case, when a partner acquires his share in a particular ratio, sacrificing ratio would also be same as the ratio in which he acquired his share from old partners. That is why answer was coming wrong. So we could make out that there are some calculation mistake correctly found out by Mr. Rishabh. 36 minus 10 is 26, not 16, as told by our brilliant student. Okay, new profit sharing ratio wrong आ रहा था, right? तो इसलिए in the question, in the 8 marks question, ये देखो, जब sacrificing ratio गलत आएगा, accounting treatment of goodwill would be wrong, because the goodwill brought in by the new partner will be, वो sacrificing गलत है, फिर capital account गलत आएगा, balance sheet गलत हो जाएगी. This was case number 3. Case number 4. Okay, case number 4. Amit, Bobby. yes sir. Very good. Case number 4. ये बेचारा जिस दिन नहीं आता उस दिन कुछ ज्यादा हो जाता है. Case number 4, Amit. अमित की आवाज आ रही है, वही होंगे और कुछ दिख नहीं रहा. हाँ देखो इधर, A and B are partners sharing profits same 3:2. C is admitted, but C कितना लेगा, किससे क्या लेगा, it is not given. ये दिया है कि A और B कितना कितना सरेंडर करेंगे. नाउ यू सी, पूरा जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट चेंज है. अभी तक आपको ये बता रहे थे द न्यू पार्टनर विल एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली इन अ पर्टिकुलर रेशियो और इन द सेम मैनर एज दे वर डूइंग गेटिंग अर्लियर. नाउ दे आर टेलिंग कि ए और बी सरेंडर कितना करेंगे. क्या दिया इसमें, सरेंडर. इसमें आप एक वर्ड देखेंगे कहीं पर, देयर इट विल बी गिवन सरेंडर, दैट ए विल सरेंडर, ए एंड बी. ए विल सरेंडर, क्वेश्चन में दिया है ए विल टू-थर्ड ऑफ हिज शेयर. बी विल सरेंडर 1/3. ठीक है.
इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि ए और बी कितना कितना हिस्सा अपने शेयर का उसे देंगे, इसको न्यू पार्टनर। तो जो ये देंगे न्यू पार्टनर का शेयर वही हो जाएगा ऐड करके। सी, ये तो क्वेश्चन ही है ऊपर इतना। नाउ यू राइट ए विल surrender 1/3 of how much? 3/5. It is 3/15. B will 2/3 होता है surrender Sir, A will by 3. 6/15. Very good, Mr. Amit, not sleeping. B will surrender 1/3 of 2/5. That is 2/. So therefore C will gain. C को क्या मिलेगा? 6/15 plus 6/15 plus 2/15. ये C का न्यू शेयर आया बेटा, C का शेयर आया है जो दिया नहीं था क्वेश्चन में। In all other cases, you saw the C share was given earlier in the question only. यहाँ C का शेयर हमने निकाला जो A और B ने क्या किया? सरेंडर किया। अब A और B के पास क्या क्या बचा? A's शेयर, A का शेयर B C को सरेंडर करने के बाद ये था A का 3/5 था ओल्ड शेयर, उसमें से 6/15 he has given. So B's share 2/5 minus 2/15. A, B, C's new share. तीनों का 15-15 आ गया। रेट अमाउंट 3:4:8. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:8. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C 3:4:8. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया। आप कैलकुलेट कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस में निकाल देगा तो वो तो जो सरेंडर होगा वो सेक्रीफाइस होगा। निकालोगे तभी तो पता चलेगा। ये तो तुम टिप बता रहे हो सीधे, इतने होशियार हो गए। डायरेक्टली यू आर टेलिंग मी द आंसर। नाउ कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Yes, sir. Sacrificing ratio will be 3:1. कहां से मेधावी? This is the tip. A will surrender 6/15. B will surrender 2/15. 3:1. Sacrificing ratio will be this one always. Sacrificing ratio हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द टिप आई एम गिविंग, बट यू हैव टू कैलकुलेट। Sacrificing ratio will be 3:1. This A will surrender and B will surrender. After calculating old ratio minus new ratio, you will calculate sacrificing ratio and it should be 3:1. This is the tip for the fourth one. Got it? Yes, sir. Be all for today.
इसका टाइम ओवर होगा ना, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे. नाउ आई विल स्टार्ट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक. Sir, just now. Just now, because here the time is getting over. Come back in the next class. Thank you. Okay, sir.